శుభప్రదం. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఐశ్వర్య రాజేష్. హలో అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రుతిక నాయక్. మనకి ఒక మెగా ఫ్యామిలీ షాపింగ్ డెస్టినేషన్ రెడీగా ఉంది. మన శుభప్రదం గ్రాండ్ షాపింగ్ మాల్ ఆఫ్ మెగా ఫ్యామిలీ. గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఆన్ అక్టోబర్ 17th. కుంటకాల్లో నేను వస్తున్నాను, మీరు రండి. ఓపెనింగ్ ఆఫర్స్, సర్ప్రైజెస్ చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ యు గైస్ వెయిటింగ్ ఫర్? రండి, మనం అందరం కలిసి షాపింగ్ చేద్దాం. శుభప్రదం మెగా షాపింగ్ మాల్, ఫ్యామిలీ ఫస్ట్. సీ యూ ఆల్ దేర్. బాయ్. रियासत कर्नाटक के कोप्पल शहर में पैगंबर इस्लाम के 1500वीं यौम विलादत के मौके पर आलमी यौम अमन इजलास शहर के तालुका स्टेडियम में 18 तारीख बरोज़ हफ्ता शाम 6 बजे लिंगा शरीफ दरगाह के सज्जाद नशीन हैदर साहब की ज़ेर सदारत में एक अजीम उशान जश्न मिलादुन्नबी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर कर्नाटक कानून साज कौंसिल के चीफ व्हिप सलीम अहमद ने कहा कि इस प्रोग्राम की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, जिसमें हर मज़हब के सोफ़ी सुन्नत शिरकत करके कौमी एकजहती भाईचारगी का पैगाम दिया जाएगा। इस दौरान हाफिज़ अली अल हुसैनी सज्जाद नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज कर्नाटक स्टेट के वक्फ चेयरमैन को तहनीत पेश की जाएगी, जिसमें सियासी, समाजी, मिली, मजहबी रहनुमा शिरकत करने वाले हैं। ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ದಿನ ಅಂತ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಖಾಜಾ ಬಂದೆ ನವಾಜ್ ಗುರುಗಳು ಸಜ್ಜಾದ ನಶೀನ್ ಅಲಿ ಹುಸೇನಿ ಸಾಹೇಬರು, ಶಿರಟ್ಟಿ ಫಕೀರೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಸವಣೂರಿನ ಚನ್ನಬಸವ ದೊಡ್ಡ ಹುಸುಮೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗುರುಗಳಾದ ನಮ್ಮ ನೀಲಂಗ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ಸಜ್ಜಾದ ನಶೀನ್ ಹೈದರ್ ಪಾಷಾ ಸಾಹೇಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में YSRCP के जिला सदर SV मोहन रेड्डी की क़यादत में एक बुध सती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों की मुजवज़ा निजकारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर दस्तखती मुहिम शुरू की गई। इस मौके पर मोहन रेड्डी ने कहा कि अवाम में शौर बेदार करते हुए हर बुध इंचार्ज अवाम से दस्तखत हासिल करेंगे। 1 करोड़ दस्तखत जमा करके आंध्र प्रदेश के गवर्नर को पेश किए जाएंगे, जैसा कि YS जगन मोहन रेड्डी ने वादा किया था। इजलास में अहमद अली खान समेत कई YSRCP कायदीन और कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। बुध इंचार्ज को दस्तखती फॉर्म भी तकसीम किए गए। గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలను ప్రైవేట్ పరం చేసినందుకు వ్యతిరేకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశానుసారం కోటి సంతకాలు సేకరించి గవర్నర్ గారికి ఇచ్చి ఆ ప్రక్రియను ఆపాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కోటి సంతకాలు కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా కర్నూలు జిల్లాలో ఈ జిల్లా మీటింగ్ పెట్టి నియోజకవర్గ నాయకులందరికీ కూడా బాధ్యతలు అప్పచెప్పాం. ఈరోజు కర్నూలు నియోజకవర్గంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయడానికి ఇక్కడ బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్స్, అలాగే కార్పొరేటర్లు, మాజీ కార్పొరేటర్లు, అలాగే కార్పొరేటర్ కంటెస్ట్ చేసే వాళ్ళు కావచ్చు, తర్వాత ముఖ్యమైనటువంటి నాయకులు అందరూ तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत ने सिंगारेनी मुलाजिमीन के लिए दिवाली के तोहफे का ऐलान किया है। खम्मम जिले कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने सिंगारेनी मजदूरों के लिए दिवाली के तोहफे के तौर पर 400 करोड़ रुपए का बोनस देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क को रोशनी देने वाले इन मजदूरों के लिए हुकूमत की जानिब से ये ऐलान खुशी का बाइस है। इस दौरान भट्टी विक्रमार्का ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी तबका को 42% रिजर्वेशन ना मिलने का वाहिद जिम्मेदार मरकज़ की बीजेपी हुकूमत है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने 12 सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म से मुलाकात की इजाज़त मांगी, लेकिन मरकज़ ने मंजूरी नहीं दी। उन्होंने अवाम से अपील की कि 18 अक्टूबर को बीजेपी के खिलाफ होने वाले BC बंद एहतजाज में भरपूर शिरकत करें।
చెడు పైన మంచి విజయం సాధించేటువంటి కార్యక్రమానికి కూడా సూచిక. అటువంటి దీపావళి పండుగ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా మంచి జరగాలని, మంచి ఆలోచన విధానాలతో ముందుకు పోయి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడుతూ అందరి జీవితాల్లో సుఖ సంతోషాలు నిండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. అట్లాగే సింగరేణి కార్మికులకి దీపావళి సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం ప్రకటించినట్టే ఈసారి కూడా దీపావళి బోనస్గా 400 కోట్ల రూపాయలని చెల్లిస్తున్నామని చెప్పడానికి సంతోషిస్తాం. तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम जिले कांग्रेस के दफ्तर में AICC के मुबस्सिरीन मेहराधन से मुलाकात की। इस मौके पर नायब वजीर आला ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर कांग्रेस के दीगर कायदीन मौजूद थे। खबर आंध्र प्रदेश के जिले अनमया रायचोटी से है, जहां पर GST में कमी से मुतालिक शऊर बेदारी रैली निकाली गई, जिसके बाद रायचोटी में वाक़ई गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड में एक जलसा मुनक़िद किया गया। इस दौरान GST में होने वाली कमी पर तबादला ख्याल किया गया और लोगों को इस बात की जानकारी दी गई। इस जलसे में जिला ट्रांसपोर्ट ऑफिसर प्रसाद व दिगर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने गाड़ियों पर GST में नुमाया कमी की है, जिससे दरमियानी और निचले तबके के अफराद को गाड़ी खरीदने में आसानी होगी। प्रसाद ने कहा कि अब हर गाड़ी की खरीदारी पर तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये की बचत हो सकती है। उन्होंने अवाम से इस फायदे का भरपूर फ़ायदा उठाने की अपील की। केरला के मशहूर सबरीमाला मंदिर में सोने की परतकारी गोल्ड प्लेटिंग के घपले के सिलसिले में तफ्तीश जारी है। इस मामले में मुलविस हैं मुल्जिमान को आज CBI के दफ्तर लाया गया, जहां उनसे पूछगछ की जा रही है। CBI दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। सख्त सिक्योरिटी के बीच मुल्जिम को दफ्तर लाया गया। इस मामले में मुमय्यना माली बेज़ाब्तगियों और करप्शन की तहकीकात जारी है, जो मंदिर की तज़ाइन व आराइश के काम के दौरान सामने आई थी। CBI हुक्काम ने इस केस को संजीदगी से लेते हुए तमाम शवाहिद इकट्ठे करने का अमल तेज कर दिया है। तमिलनाडु के थोंडामुथर के जंगलात में तबाही मचाने वाले एक जंगली हाथी को महकमा जंगलात की टीम ने काबू में कर लिया है। ये हाथी हालिया दिनों में कई ज़राई खेतों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ इंसानी जानों के नुकसान का भी बाइस बना था। महकमा जंगलात की जानिब से हाथी को काबू पाने के लिए खुसूसी टीम तैनात की गई थी, जिसने एहतियात से कार्रवाई करते हुए इसे महफूज तरीके से पकड़ लिया। ज़राए के मुताबिक हाथी को अब महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है, ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। तमिलनाडु के कुरूर जिले में पेश आए अफसोसनाक भगदड़ वाक़े की तहकीकात अब CBI के सुपुर्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की संगीनी को देखते हुए CBI इंक्वायरी का हुक्म जारी किया है। इस हुक्म के बाद CBI की एक खुसूसी टीम कुरूर ज़िला पहुंच चुकी है और वाक़े से मुतालिक शवाहिद इकट्ठा करने, आइनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड करने और मुकामी इंतज़ामिया से मालूमात हासिल करने का अमल शुरू कर दिया गया है। याद रहे कि ये वाक़या एक अवामी तकरीब के दौरान पेश आया था, जिसमें शदीद भीड़ के बाइस भगदड़ मच गई थी। इस सानहे में 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वाक़े की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात ज़रूरी हैं, ताकि असल वजूहात का पता चलाया जा सके और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाया जा सके। तेलंगाना के ज़िले महबूबनगर में पालामूर यूनिवर्सिटी के चौथे कन्वोकेशन की तकरीब मुनक़िद हुई। इस तकरीब में तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने शिरकत की और तलबास में इसनाद तकसीम किए। कन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत के बाद गवर्नर ने डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की और ज़िलाई ओहदेदारों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन के साथ बातचीत की। Influencers and leaders are
taking part in the interaction with district officials, learning about all the development that is taking place in the district from the district magistrate of there. And I was looking at the presentation given. आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने आइंदा महीने की 2 से 5 तारीख तक गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। वो रियासत में सरमायाकारी के लिए सरमायाकारों को राग़िब कराने के लिए लंदन जाएंगे। वजीर आला आइंदा महीने की 14 और 15 तारीख को विशाखापट्टनम में होने वाली शिराकती कॉन्फ्रेंस के ज़िमन में कई सनतकारों से मुलाकात करेंगे और वो सनतकारों से दरख्वास्त करेंगे कि वो विशाखापट्टनम में होने वाली पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। सनतकारों को रियासत में सरमायाकारी के मौक़ों से वाकिफ़ कराएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में आज 77वीं बैच के अफसरान की पासिंग आउट परेड मुनक़िद हुई। इस मौके पर हार्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बलजीत सिंह चौधरी ने परेड की सलामी ली और नए अफसरान को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर DGBSF ने कहा कि इंडियन पुलिस सर्विस सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक मिशन है जो कौम में कानून, इंसाफ और अमन व अमान को बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करती है। SVP NPA में हम प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, जिसमें मुख्य दक्षताओं का निर्माण करने के लिए एडल्ट लर्निंग मेथोडोलॉजीज सच एज इंटरैक्टिव लेक्चर, हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस, केस स्टडीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस का उपयोग किया जाता है। आधुनिक पुलिसिंग के विकसित परिदृश्य के साथ तालमेल रखने के लिए हमारे पाठ्यक्रम को लगातार अपडेट किया जाता है। तेलंगाना बीजेपी के लीडर NV सुभाष ने कहा कि बिहार असेंबली इंतखाबात में NDA ज़बरदस्त अक्सरियत के साथ दोबारा हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग NDA को वोट देने के लिए बेताब हैं ताकि एक मुस्तहकम और तरक्याती हुकूमत बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि असेंबली इंतखाबात पर इंडिया इत्तेहाद का कोई असर नहीं पड़ेगा। और whether it's leave alone the Congress party leaders or the Karyakartas are looking any scope, they are feeling any scope or any issue that Rahul Gandhi will definitely make a dent in Indian politics, whether it is Bihar elections or whether it is upcoming West Bengal or other state elections. Rahul Gandhi failed miserably. Whenever he is in India, he talks about the constitution, he talks about the reforms, he talks about the reservation policy, the backward reservation policy, he talks about vote theory.